one and all, and I welcome you all on this event of e-webinar on Maker of Modern Indian and Principles of Panchsheel. Here today we all unite to celebrate the auspicious occasion of 131st anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. I would like to thanks to the Joint Secretary Admin and his team who guided us to revive the memories of Pandit Jawaharlal Nehru through this platform. Today, on the eve of his birthday, we could not stop ourselves to remember an elegant rose on sherwani pocket, bright eyes with so many dreams, and forever smiling face. And finally, last but not the least, slogan Chacha Nehru Zindabad, Chacha Nehru Zindabad. As a young children had always been very close to his heart, therefore this day is also been known as Children's Day. Nehruji was a legendary figure of this millennium, born on 14th November 1889 in a very reputed family at Allahabad. Apart from his barrister skills and knowledge he earned at London, his administration was his foremost unavoidable quality he receives in legacy from his ancestral family. Administrative aptitude was not earned, but it exists in his blood, in his veins. Thus, he was the first Prime Minister of British independent India. He hadn't left any stone unturned to build the nation and bring it to the stage of modern India from the British Indian colony. Discovery of India, an extremely wonderful literature authored by Pandit Jawaharlal Nehru, was not just a book enriched with the principles and experiences, but it's a dream of Nehruji to discover a beautiful independent India, our nation, which he engraved on paper and articulated all these ideas in his mind to actually his dreams come true and make him execute. Pandit Jawaharlal Nehru was one of the principal leaders of Indian independence movement in 1930s and 40s. As he reveals in his autobiography that he had lively interested in Indian politics since he was studying abroad. Jawaharlal Nehruji was also attracted by Gandhiji's insistence on fighting against British rules of India without any fear, hate, and with the support of non-violence, and that was the foremost, strongest weapon of Gandhiji against the Britishers. Nehruji was also known for his neutralist policies in foreign affairs. After Nehruji's father's death in 1931, he was shrewdly elevated to the presidency of Congress Party by Gandhiji, his overhead office by the presidency of Congress Party over the heads of various seniors. He was the mainstream of Congress movement who drew the Indian youth and inclined himself to follow the midway with the added responsibilities of Gandhiji. Nehruji played a major role as an activist in civil disobedience, Salt March, where he had been arrested and many more other instances where he has been put behind the bars. But finally, he brings an independent India with a parliamentary government. Nehruji had also contributed in drafting our Indian Constitution. The 5 principles of Panchsheel given by Nehruji had been lifeline to so many generations in our independent nation since 29th April 1954. It was the day when the treaty was signed by Mr. Zoe and Nehruji. The preamble of this Panchsheel is mutual respect
to the territory, integrity and sovereignty of other nations. Mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and mutual benefits, peaceful coexistence. These principles were later unanimously adopted on 11th December 1957 by United Nations General Assembly. Therefore, Nehruji's Panchshir principles develop an ideology dedicated to peace and development of all throughout the world. At the end, I conclude my speech with this note that we all pledge to keep on the remembrance of Nehruji and keep his legacy and revive to adhere and adopt these principles in our life so that dream of modern India could be achieved and a successful developed nation could be achieved by this generation. Jai Hind, Jai Bharat. Now, I would like to invite our principal, Mr. Shoaib Mohammed, to hold the podium and address you all. Thank you. मैं शोएब मोहम्मद, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के निर्माता एवं पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित वेबिनार में आप सभी का पुनः स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी राजकीय महाविद्यालयों में वेबिनार आयोजित करवाए जाने का राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया गया है, उसी कड़ी के अनुसार आज हम इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इस वेबिनार में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन का जो दर्शन करेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस वेबिनार को सभी महाविद्यालयों में आयोजित करवाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सभी जो नेहरू जी का जो जीवन है, उनके जो प्रेरणादायी विचार थे, उनके जो वो एक आदर्श जो उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने जो युवा पीढ़ी के लिए, देश के लिए जो योगदान किया या जो कुर्बानियाँ दी, वो सभी हम युवा पीढ़ी तक उसको पहुंचा सके। इस वेबिनार का ये लक्ष्य है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों तक नेहरू जी का जो जीवन है वो पहुंच पाएँ कि नेहरू जी ने अपने जीवन के अंदर इस देश के विकास में क्या क्या योगदान दिया। अब नेहरू जी का जो संक्षिप्त परिचय है वो मैं आपको बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की थी। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री पास की। उन्होंने जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे वहां पर जो अपना ग्रेजुएशन किया। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए, जहां तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे तो वो विश्व की जो राजनीति है उसमें उनकी दिलचस्पी हुआ करती थी। राजनीतिक रुझान उनका अपनी पढ़ाई के दौरान भी रहा है। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेल आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा था। उनको 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। ये उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 1916 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले, जिनसे वो काफ़ी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने 1926 इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का भी दौरा किया था। बेल्जियम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में
तीन देशों के सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने 1927 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इससे पहले 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आज़ादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1958 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उनके इस रिपोर्ट का उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। इसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और उसके वो ये महासचिव थे। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण रूप से अलग करवाना था। यानी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन का कार्य भी पूर्ण किया था। उनको लेखन का भी शौक था। उन्होंने अपना राजनीति के साथ में, देश के विकास में योगदान के साथ में, देश की आज़ादी के साथ में उनको लेखन का भी शौक था। उन्होंने जो मेरी कहानी और भारत की खोज जो किताबें लिखी वो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। पंडित नेहरू ने जो भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया उन्होंने, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो, जो उन्होंने नारा दिया था, भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किला ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार उन्हें लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा। तो ये इनका एक राजनीतिक जो सफर था अपने जीवन का, वो संक्षिप्त परिचय था आज़ादी से पहले। फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर ये अपने स्वर्गवास 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने इसी दौरान अपने जो 3 आम चुनाव जो 1951, 1957 और 1962 में हुए थे, उनमें इन्होंने विजय प्राप्त की। यानी कि नेहरू जी जो थे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके अच्छे व्यक्तित्व, संस्कारिता एवं विद्वानता के कारण उनको ये पद प्राप्त हुआ था। आज़ादी के समय हमारे देश की जनता गरीबी, कुपोषण व अनेक बीमारियों से ग्रस्त थी तथा हमारा देश हर क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के लिए इन समस्याओं का हल कर पाना आसान कार्य नहीं था। फिर भी पंडित नेहरू जी के अथक प्रयासों से कई समस्याओं का, जो हमारे यहाँ पे गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की जो समस्याएं थी, उन पर उन्होंने काबू पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत को एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तित होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण श्री नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो इस भारत को विकासशील, विकसित करने के लिए या इसको आधुनिकता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। नेहरू जी ने शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन इत्यादि के विकास करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के जो क्षेत्र में है वो विकास तेजी से हो पाए इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। नेहरू युग की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। नागरिकों को बिना किसी जाति, लिंग एवं धर्म भेद के
बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेहरू जी ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने देश में वर्ष 1952 में 5 IIT संस्थानों की स्थापना की। नेहरू जी का ये था मत था कि जो देश है इसको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। इसी के लिए उन्होंने 1952 में 5 IIT की स्थापना की और उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भी किया। नेहरू जी ने गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया उसका श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, जिससे कि गांव का जो है वो शीघ्र वो उनका जो है वो सुविधा पूर्वक विकास हो सके और गांव भी जो हैं वो एक विकास की दौड़ में शामिल हो सके। नेहरू जी का जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक सिद्धांत है वो पंचशील के सिद्धांत भी रहे हैं। नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। ये जो नेहरू जी के विश्व शांति के जो पंचशील के सिद्धांत हैं उनमें से पहला सिद्धांत है समानता एवं आपसी फायदा। इस सिद्धांत में नेहरू जी का मानना था, नेहरू जी ने कहा कि सभी छोटे व बड़े राष्ट्र एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करें। जो बड़े व छोटे राष्ट्र हैं वो आपस में भाईचारे का संबंध स्थापित करें। उनमें ये भावना नहीं हो कि हम एक बड़े राष्ट्र के रूप में बड़ी शक्ति हैं और छोटे राष्ट्रों को वो दोयम दर्जे का समझे। दोनों के बड़े या छोटे राष्ट्रों के बीच में मैत्री का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, इसमें कोई भी देश हीन भावना से ग्रस्त नहीं हो और एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद करेंगे। जो बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो जो छोटे देश और विकासशील या अविकसित देश हैं उनकी मदद करेंगे, जिससे कि पिछड़े देशों का विकास हो सकेगा। ये उनका पंचशील का सिद्धांत था। दूसरा उनका महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना। यह पंचशील के सिद्धांत का केंद्र बिंदु था। शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ रहना ही ये सुनिश्चित कर सकता था कि एक दूसरे पर न तो आक्रमण कर सकता था और न उनके आंतरिक मामलों में दखल दे सकता था। यानी नेहरू जी का जो ये सिद्धांत था पंचशील का, उसमें कहा गया था कि जो दो देश हैं वो आपस में एक दूसरे का अस्तित्व बनाए रखते हुए मैत्रीपूर्ण तरीके से रहेंगे और एक दूसरे के जो आंतरिक मसले हैं उन पर दखल नहीं देंगे। तीसरा उनका जो सिद्धांत है एक दूसरे की भौगोलिक अखंडता का सम्मान करना तथा सार्वभौमिकता का भी सम्मान करना। सभी आज़ाद देश अपनी एक सार्वभौमिक ताकत रखते हैं जिसके अंतर्गत उनके अंदरूनी मामलों में कोई दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही आक्रमण कर सकता है। चौथा पंचशील का सिद्धांत था आक्रमण की नीति का परित्याग करना। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ये उनका पंचशील का सिद्धांत जो उन्होंने विश्व शांति के लिए दिया। विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, इससे पूरे विश्व के अंदर काफ़ी बढ़ावा मिला। और अगला जो सिद्धांत है वो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। नेहरू जी का मानना था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण की में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनको किसी भी पीढ़ी द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। तो नेहरू जी का जो जीवन है, नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए प्रयास किए, नेहरू जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किए, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बनकर और इस देश को आधुनिक बनाने का सपना संजोया, जो आज भी जारी है। और आज जो हम भारत का जो स्थिति देखते हैं उसमें नेहरू जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत हुए, पंचवर्षीय योजनाएं हुई। नेहरू जी को लेखन का भी शौक था। नेहरू जी ने जो अपना जो पुस्तक थी मेरा जीवन का इतिहास वो उन्होंने लिखी और उन्होंने देश को जो आज हम जितना भी इस देश को एक दिशा देने का कार्य और देश को विकास के पथ पर ले जाने की जो दिशा उन्होंने नेहरू जी ने प्रदान की थी, आज हम उसी पथ पर चल रहे हैं। और उनके जीवन से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको प्रेरणा लेना चाहिए और उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देश के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं मेरे साथी सहायक आचार्य विधि इंद्रचंद्र कुमावत से आमंत्रित करूंगा कि वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के बारे में अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद्र कुमावत
सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। बड़ी ही प्रशंसा का विषय है कि आज बाल दिवस की पूर्व संध्या पर आधुनिक भारत के निर्माता एवं पंचशील के सिद्धांत पर वेबिनार आयोजित की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है और ये पद देश की जनता ने उन्हें योग्य, संस्कारिता एवं विद्वान व्यक्ति होने के कारण प्रदान किया। आज़ादी के समय हमारे देश की जनता गरीबी, कुपोषण और बीमारियों में अव्वल नंबर पर थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के लिए इन समस्याओं का निदान कर पाना इतना आसान कार्य नहीं था। फिर भी पंडित नेहरू जी ने इन समस्याओं से देश को निकालने का भरपूर प्रयास किया तथा कई समस्याओं का निदान भी किया। नेहरू जी ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो कार्य किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है और इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य एवं पशुपालन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। देश में सर्वप्रथम 1951-52 में आम चुनाव करवाए गए। इस चुनाव को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया गया। इसके अनुसार 21 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को बिना जाति, लिंग, धर्म भेद के मत देने का अधिकार प्राप्त था। यह नेहरू युग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेहरू जी के कार्यकाल में सेना के ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से डाली गई। नेहरू जी ने ये निश्चित किया हमारे देश की सेना राजनीति में कभी हस्तक्षेप न करे। आज़ादी के समय हमारे देश की सेना की तीनों इकाइयां अर्थात थल सेना, जल सेना और वायुसेना एक ही सेनाध्यक्ष के अंतर्गत होती थी। नेहरू जी ने तीनों इकाइयों को पृथक पृथक कर दिया और हर सेना का सेनाध्यक्ष उसकी इकाई से ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया और ये भारत का सौभाग्य है कि नेहरू जी द्वारा स्थापित परंपरा और नीति आज भी कायम है। नेहरू जी ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने 5 IIT संस्थान वर्ष 1952 में खोले गए। पहली संस्थान खड़गपुर में खोली गई तथा बाद में दिल्ली, कानपुर, मद्रास और बम्बई में स्थापित की गई। नेहरू जी के समय से ही परमाणु ऊर्जा बमों का परीक्षण शुरू हुआ तथा वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांवों के विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया। साथ ही पंचायत राज के विकास और उनके सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। देश के सर्वांगीण विकास के लिए नेहरू जी के कार्यकाल में ही पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ करवाया गया। नेहरू जी के कार्यकाल की एक प्रमुख विशेषता उनकी विदेश नीति थी। नेहरू जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। नेहरू जी के समय संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट अमेरिका का था और दूसरा गुट सोवियत संघ का था। भारत नेहरू जी के नेतृत्व में इन 2 गुटों में से किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। नेहरू जी ने
गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता के संबंध में अपना विचार इस तरह रखा, जहां तक उपनिवेशवाद, फासिज्म और रंगभेद की बुरी शक्तियों या न्यूक्लियर बम और आक्रमणों के दमन के प्रश्न हैं, हम जोरदार रूप से और किसी दुविधा के बिना उनके विरुद्ध हैं। हम शीत युद्ध और सैनिक गुटों से दूर ही रहते हैं। नेहरू जी ने शांति, निशस्त्रीकरण तथा एटम बमों की समाप्ति का उद्देश्य विश्व के समक्ष दृढ़ता से रखा। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंचशील का प्रसिद्ध सिद्धांत विश्व के नए और पुराने देशों के समक्ष रखा। नेहरू जी ने जो पंचशील के सिद्धांत दिए, उसका प्रथम सिद्धांत था समानता एवं आपसी फायदा। नेहरू जी का मानना था कि सभी छोटे व बड़े राष्ट्र एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करें। इसमें कोई भी देश हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा और एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद करेंगे, जिससे पिछड़े देशों का विकास हो सके। दूसरा जो पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी द्वारा दिया गया था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना, ये पंचशील के सिद्धांत का केंद्र बिंदु था। शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ रहना ही ये सुनिश्चित कर सकता था कि एक दूसरे पर न तो आक्रमण कर सकता था और न उसके आंतरिक मामलों में दखल दे सकता था। तीसरा जो पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी द्वारा दिया गया, एक दूसरे की भौगोलिक अखंडता का सम्मान करना तथा सार्वभौमिकता का भी सम्मान करना। सभी आजाद देश अपनी एक सार्वभौमिक ताकत रखते हैं, जिसके अंतर्गत उनके अंदरूनी मामलों में कोई दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न आक्रमण नहीं कर सकता। चौथा जो पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी द्वारा रखा गया, वह है आक्रमण की नीति का परित्याग करना। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा जो पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी द्वारा दिया गया, वह है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। नेहरू जी का मानना था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार नेहरू जी द्वारा राष्ट्रों में शांति, तथा सद्भावना बनाए रखने के लिए पंचशील के सिद्धांत रखे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको किसी भी पीढ़ी द्वारा भुलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज इस ई वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो इस ई वेबिनार है, उसका विषय है आधुनिक भारत के निर्माता एवं पंचशील के सिद्धांतों के जनक जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये वेबिनार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू एवं माता का नाम स्वरूप रानी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पद को सुशोभित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सत्ता मिलना 1941 में तय हो गया था, जब बापूजी ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 उनकी मृत्यु उपरांत तक
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और उन्होंने 3 बार चुनाव जीते। इसके बाद अब हम बताते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा रही वो शिक्षा बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा रही। उनकी स्कूली शिक्षा है वो हैरो कॉलेज में और उनकी जो कॉलेजी शिक्षा है वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में हुई। इसके अलावा 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। इस तरह के तत्कालीन समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शिक्षा थी वो काफ़ी उच्च स्तरीय रही। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो लेखन कार्य रहा वो लेखन कार्य उनके व्यक्तित्व और उनके उच्च आदर्शों को दर्शाता है और उनके लेखन कार्य से भी पता चलता है कि उनकी भारत के प्रति क्या विकास में क्या भूमिका थी, भारत को उच्च आदर्शों पर प्रस्थापित करने की क्या भूमिका थी। उन्होंने लगभग जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं वो एक है उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए काल्पनिक पत्र जो कि पूरे विश्व इतिहास के बारे में बताते हैं और उनको ये जानकारी देते हैं कि विश्व इतिहास की स्थिति कैसी रही। भारत एक खोज नाम की पुस्तक भारत के इतिहास, संस्कृति, कला के बारे में जानकारी देती है और इस पुस्तक पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम है भारत एक खोज नाम से इसका एक धारावाहिक भी बना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी आत्मकथा मेरी कहानी नाम से लिखी गई उनके द्वारा और उस आत्मकथा के बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है वो उच्च सिद्धांतों, नैतिक आदर्शों से दूर स्वयं को प्रतिस्थापित न करते हुए उनके संघर्ष की सच्ची कहानी प्रस्तुत करती है और विश्व की महान आत्मकथाओं में से एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है जो कि व्यक्ति के जीवन को उच्च आदर्शों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे और बच्चों ने चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। चाचा नेहरू लेखन की जो है लेखन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बाद उनका स्थान काफ़ी लिया जाता है क्योंकि जेल में उन्होंने अपने समय व्यतीत करने के लिए उसी लेखन क्षमता का उन्होंने उपयोग किया। 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 साल जेल में भी बिताए। उसी जेल में के प्रवास दौरान उन्होंने ये किताबें लिखी। अब किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिकवाद के निर्माता हैं और किस तरीके से उनके विचार आज भी भारतीय राज व्यवस्था में, राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हम देखते हैं। इससे पहले जो हम बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों ही 30 वर्षों का साथ रहा और गांधी जी का प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू पर काफ़ी पड़ा और दोनों ही मानवतावादी विचारधारा के पोषक रहे। लेकिन महात्मा गांधी तो एक तरीके से धार्मिक नेता बन चुके थे भारत देश के, लेकिन जो राजनीतिक नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने सच्चे अर्थों में। लेकिन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जो मूलभूत अंतर है विचारों में वो हिंसा और अहिंसा पर है। महात्मा गांधी हर तरीके से अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हिंसा के बिना किसी भी राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। हिंसा का जवाब देना जरूरी है। अगर आप पर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का जवाब आपको देना जरूरी है, नहीं तो किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व संभव नहीं हो पाएगा। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो लोकतांत्रिक विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विचार दिए उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी भी राष्ट्र के नागरिक स्वतंत्र नहीं होंगे
तो वहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जब तक उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, उनके विचारों की सम्मान नहीं किया जाएगा, तो नागरिक राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं होगा और लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र के वो समर्थक थे। संसदीय लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि हमेशा आप अपने विपक्ष के नेताओं के भाषण को ध्यान से सुनो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रश्नकाल के बहुत ही प्रशंसा करते थे और बहुत उन्हें कहते हैं कि संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जवाहरलाल नेहरू आर्थिक लोकतंत्र के भी वो समर्थक थे। आर्थिक लोकतंत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन, उत्तम स्वास्थ्य और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए वो समर्थन करते थे। सामाजिक न्याय के समर्थन में उन्होंने जात पात को लोकतंत्र का विरोधी माना। अगर जहाँ जात पात की व्यवस्था है तो वहाँ पर लोकतंत्र की संभावना क्षीण हो जाती है। सांप्रदायिकता जहाँ पर उपस्थित है वहाँ पर देश की एकता कभी भी संभव नहीं है। लैंगिक भेदभाव, कभी नेहरू जी पक्षधर नहीं थे। लैंगिक भेदभाव से आधी आबादी जो राष्ट्र के विकास में योगदान करती है वो पिछड़ जाती है, इससे राष्ट्र का निर्माण होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांत थे, वो सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत समझौते के नाम से जाने जाते हैं, और ये तिब्बत समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस पंचशील के सिद्धांतों ने पूरे विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए संदेश दिया, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनमें इनको शामिल किया गया है। पहला सिद्धांत कहता है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात है अनाक्रमण की भावना, यानी किसी भी देश पर प्राथमिक रूप से आप आक्रमण न करें। तीसरी है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। समानता एवं पारस्परिक लाभ, दो राष्ट्र आपस में समान व्यवहार करें और पारस्परिक लाभ को प्राप्त करें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास, यानी कि स्वयं शांत रहे और पूरे विश्व को शांति की ओर अग्रसर करे, यही शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना है। तो इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पंचशील के सिद्धांत है, ये एक अमूल्य धरोहर है, संपूर्ण राष्ट्रीय नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए, और खासकर वर्तमान समय में जब भारत चीन के बीच में जो राजनीतिक और दबाव बन रहा है उसके लिए तो काफी उपयोगी है। इस 1954 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न की उपाधि भी मिली। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ विचार भी देखेंगे जो उनके द्वारा दिए गए थे। पंडित जी के विचार थे। उन विचारों में सबसे पहला विचार था कि नागरिकों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं लोकतंत्र का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि और सारी व्यवस्थाएं बुरी हैं। अज्ञानता हमेशा विकास को और नए विचारों को खत्म कर देती है। भारतीय लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। किसी भी बड़े कार्य के लिए उसके नैतिक लक्ष्य हमेशा तैयार होने चाहिए। इसके अलावा दो लोग, महान लोग और छोटे लोग साथ नहीं चल सकते, और एक महान कार्य और एक छोटा कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा आपको विनम्र रहना चाहिए और नैतिक आदर्शों पर चलते रहना चाहिए। इस तरीके से हमने पूरे विवेचन से देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो आदर्श हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी स्वयं अनुभूति है, वो अनुभूति ये है कि
राष्ट्र में लोकतंत्र हो, राजनीतिक न्याय हो, धार्मिक न्याय हो और आर्थिक न्याय हो, और उनकी जो आत्मकथा है वो आत्मकथा स्वयं सिद्ध आधारभूत सिद्धांतों से आधारित है, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को इस चीज़ों के बारे में डाला। और सांप्रदायिकता पे जो उनके विचार हैं उनके स्वयं सिद्ध अनुभव थे जो उन्होंने देखे भारत पाक विभाजन पे, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया। अब इसी वेबिनार की आगे की कड़ी में मैं समापन उद्बोधन के लिए हमारे सहायक आचार्य श्री देवेश पाठक सर को आमंत्रित करता हूँ। श्री देवेश पाठक सर। नमस्कार, मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। इस वेबिनार में जो उपस्थित हुए और हमारे साथ ऑनलाइन जो माध्यम से जो जुड़े उन सभी सहभागियों का, मेरे साथी सहायक आचार्यों का, सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये वेबिनार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो जन्म दिवस है 14 नवंबर, उससे एक दिन पूर्व 13 नवंबर को मनाया जा रहा है, और इसमें पंडित नेहरू से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हम अपने छात्रों को और अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी विभूति थे जिनका स्मरण और जिनके कार्यों का वर्णन बार बार में होना चाहिए, नई पीढ़ी तक वो बात पहुंचनी चाहिए जिस ध्येय को लेकर के वो चले थे, जिस ध्येय को लेकर के वो आगे बढ़े थे। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे और एक ऐसे दक्ष राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने राष्ट्र में व्यापक विविधता की भारतीय चुनौती को भारत की शक्ति बना दिया। भारत जो राष्ट्र विविधता से भरा हुआ, उनकी जो एक ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने उस विविधता को हमारी शक्ति के रूप में जो केंद्रित कर दिया, शक्ति के रूप में उसको आगे बढ़ा दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संस्थापक प्रधानमंत्री के रूप में वे आधुनिक भारत के दूरदृष्टि स्वप्न दृष्टा भी थे, और उस महान स्वप्न को तराशने के महान प्रयोग के वो एक महानायक भी थे। उनकी जो स्वप्न उन्होंने देखा, उस स्वप्न के बारे में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो दिया गया उनका भाषण, जो संसद के सेंट्रल हॉल में दिया गया था, उसमें उन चीज़ों को उन्होंने एक एक बारीकी से बता दिया, एक बारीकी से जो है समझा दिया राष्ट्र के संबोधन में कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह का भारत को देखना चाहते हैं। नेहरू जी ने जो स्वप्न देखा था और उसका जो बीज बोया था, वह आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप उसके द्वारा ले लिया गया है। आज भारत की जिन खूबियों का बखान दुनिया भर में, विश्व भर में किया जाता है, उन सभी की जड़ों में कहीं न कहीं नेहरू जी की विचारधारा हमको दिखलाई पड़ती है। नेहरू के समय भारत की चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी। देश आज़ाद हुआ था, दंगों से निकला हुआ था, और लोगों की उम्मीदें तथा आकांक्षाएं भी बहुत अधिक थीं। विविधतापूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर लोकतंत्र के माध्यम से प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने का कठिन लक्ष्य उस समय वर्तमान भारत के समय खड़ा हुआ था। ऐसे समय में नेहरू जी ने उस लक्ष्य को भली भांति जो है पूरा किया और उस देश को प्रगति के पथ पर आगे जा करके ले गए। नेहरू जी सार्वजनिक जीवन में गांधी युग के उपज थे। गांधी जी के प्रभाव से कई जो लोग थे वो पत्थर से पारस बन गए। नेहरू जी तो स्वयं प्रतिभावान थे। नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था उसको न केवल तराश कर गांधी जी ने एक अलग पहचान दी, बल्कि
अपने बाद वाली पीढ़ी में उन्होंने भारतीय राजनीति का महानायक उनको बना दिया। आज जिस मुकाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी जो ख्याति और उनकी जो विचारधारा जिसको कि भारत ने अपनाया है, बाद वाली पीढ़ी में ऐसे महानायक बनना अभी संभव नहीं हुआ है। नेहरू जी एक ओर तो विज्ञान और मानवतावाद के प्रति अदम्य उत्साह था और साथ ही वे प्रार्थना, सत्याग्रह, आत्मा की आवाज़ पर भी कार्य करने वाले उत्साही व्यक्ति थे। न केवल जो विज्ञान और मानवतावाद, बल्कि वो एक तरह से कहें कि उत्साह और उनकी प्रार्थना और सत्याग्रह में भी उनका अटूट विश्वास नेहरू जी का था और उसको उन्होंने कई बार जो है प्रयोग में लिया। नेहरू साम्राज्यवाद विरोधी थे, लेकिन उनके साम्राज्यवाद विरोध में समाजवाद से अधिक राष्ट्रवाद से वो प्रेरित थे। अपने उदार और व्यापक दृष्टिकोण के कारण नेहरू में एक समन्वयवादी प्रवृत्ति थी और गांधी जी के विश्व बंधुत्व की से प्रभावित थे। अतः समन्वयवादी नेहरू ने राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयता के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित किया, क्योंकि नेहरू जी प्रारंभ से ही समन्वयवादी थे। समन्वयवादी के साथ साथ उन्होंने कहें कि वो एक अलग व्यक्तित्व थे। वो कहें कि अपना आलोचना भी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आज असहिष्णुता बढ़ रही है। वो अपनी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी के भी जो लोग थे उनकी बातें भी ध्यान से सुनते थे, सहिष्णु थे। आज तो स्थिति ये है कि स्वयं की पार्टी में भी यदि कोई विचारधारा की बात करे तो ऐसी स्थिति में उसको व्यक्तिगत रूप से विरोध उसका आपस में होने लगता है। नेहरू जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि चूंकि उनकी कोई बुराई करने वाला नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी बुराई और खुद अपना कमियों को ढूंढते थे और जो विरोधी दल के नेता थे उनसे इस बात को कहते थे कि हमारी विचारधारा में हमारे सरकार की जो कमियां हैं वो भी हमें बताई जाएं, जिससे कि उनमें सुधार किया जा सके। तो ये उनकी सहिष्णुता की ही एक निशानी है। एक और जहां नेहरू को भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ थी, जिसके आधार पर ही उन्होंने भारत एक खोज जैसी मौलिक रचना की, साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी गहरी पकड़ थी। उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए दो महत्वपूर्ण योगदान, पहला गुट निरपेक्षता की विदेश नीति जो देन है वो नेहरू जी की ही देन है, तथा पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो भी नेहरू जी की ही देन है। वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो कि भारत की आज़ादी के समय जितने प्रासंगिक थे, आज भी उनकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आई। नेहरू जी की भारतीय पंथ निरपेक्षता के वास्तविक प्रणेता थे। वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे तथा सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे। उनकी पंथ निरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना। उनकी पंथ निरपेक्षता का मूल आधार मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था और सत्यबोध के प्रति जिज्ञासा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सब उनको पंथ निरपेक्षता को इस प्रकार से उनके द्वारा परिभाषित करते थे, इस प्रकार वो मानते थे। नेहरू ये मानते थे कि देश में ने राजनीतिक एकीकरण तो प्राप्त कर लिया, किंतु भावात्मक एकीकरण प्राप्त करना अभी बाकी है। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिक विविधताओं के साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से एक समझें तथा भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। जाति, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र से संबंधित भावनाओं को राष्ट्र से ऊपर नहीं है। समझें, भारतीय संविधान
जो भारतीय संविधान है वो इन्हीं विशेषताओं का भारतीय संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। उनका मूल लक्ष्य सांप्रदायिक सद्भाव एवं सहिष्णुता की स्थापना करना था, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना तथा विकसित करना था। नेहरू जी के जो पंथ निरपेक्षता के जो विचार हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही जीवित हैं। आज असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और लोग आपस में लड़ाई झगड़े भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर करने लग जाते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय प्रगति में रुकावट डालते हैं। हमें चाहिए कि जो नेहरू जी ने जो सपना देखा था, जिस तरह के भारत की उन्होंने संकल्पना की थी, उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। धन्यवाद।